So, good morning, class. This is now the unit 4 of the technical communication, and we are going to proceed with the lecture 1 that deals with the nuances of interviews. Now, since you all are pursuing your professional career, and sooner or later you all be facing the campus recruitment drive, and there are various steps involved in the campus recruitment drive. First of all, the written test is there, and those who qualify the written test are called for the group discussion and the personal interview round. So, in this session of the technical communication, we'll see what interview is all about. Now, whenever you are appearing for a recruitment drive, your knowledge is being judged, evaluated by the means of written test. And in written test, various questions are there. There are questions from your technical stream. If someone is from civil engineering, so civil engineering questions are there. Someone from mechanical engineering, so ME questions are there likewise. And after the technical session, there are also sections on the verbal ability. There are verbal ability questions that test your efficiency and proficiency in the English language. There are grammar questions, there are vocabulary questions, reading comprehension, and there are aptitude questions, quantitative aptitude questions. And to judge or evaluate your analytical ability, there are analytical questions, puzzles, reasoning questions are there. So, what is being evaluated in the interview? Why interview is being conducted? So, the thing is, the subjective knowledge, the conceptual knowledge of the candidate is being evaluated by the means of written test. But the other personality aspects like leadership quality, like communication skill, like integrity, like the attitude towards work, there are a number of parameters that defines a person's personality. So this is going to be evaluated either by the means of group discussion or interviews. There are certain aspects which are not being properly evaluated even in the group discussion also. So for that person, we need a one-to-one interaction with the prospective candidate. So interview can be defined as it is the communication, it is the interaction with a purpose. It is the interaction between two or more people. The interaction between the interviewer and the interviewee. The person who gives interview is called interviewee. So it is the communication with a purpose, it is the interaction with the purpose, and the purpose is to share information, to get to know one another. If I am giving interview, so the interviewer is asking me question to know my knowledge, to know my attitude towards work, why am I interested in this particular job, what are my future plans, what are my hobbies. There are n number of questions. And I also want to know about my prospect in the organization, what position is being offered, what salary is being offered. So it is a two-way communication with a purpose, and the purpose is to share information and get to know one another, each other. Okay? So interview is an interaction between two or more persons for a specific purpose, in which the interviewer assesses, means he evaluates or she evaluates the interviewee's suitability for recruitment, admission or promotion. Now these interviews are conducted not only for the purpose of employment, interviews are also conducted for admissions also. Interviews are also conducted if suppose a person is being promoted, so whether he or she is eligible for promotion or not. Interview is also conducted whenever a person is trying to leave his or her job, then also interview is being conducted. Interview is also conducted when there is a problem, to know the cause of the problem and to know the possible solution. Interview is also conducted. Interview is also conducted to counsel a person. If a person is facing problem, then we want to sit with that person and get to know about his or her problem and try to find out the possible solution. So the scope of the interviews are varied. So what is the objective of the interview? Like I have already discussed, to select a person for a specific task. Interview is the basic requirement, the fundamental requirement of every selection process. By the means of interview, I can know whether the person is suitable or not. How should I be able to know whether the person is suitable to know? I will be asking question.
I'll be asking question to that pertains to that problem, that pertains to that specific job. Why should I select you? What makes you think that you are the most suitable person for this job? What are your basic qualifications? What work have you done in your previous organization? How will you be able to help us? How will you be able to be useful for us? So there are n number of questions by which we can ascertain whether the person is suitable for this kind of job or not. Interviews are also used to monitor performance. Whenever in a company there are performance appraisal. Appraisal means evaluation. So whether a person is able to perform that current job efficiently, effectively or not, for this purpose we'll be having a discussion with the employee. There will be a performance record of that person. उस पर्सन का जो परफॉर्मेंस रिव्यू रिकॉर्ड होगा वो लेकर के हम लोग बैठेंगे और एक दूसरे से चर्चा करेंगे कि वेदर योर परफॉर्मेंस वाज अप टू द मार्क और नॉट, एंड इफ़ योर परफॉर्मेंस इज़ नॉट अप टू द मार्क, व्हाट वाज द रीजन दैट यू वर नॉट एबल टू अचीव योर टारगेट. So on this basis of the performance appraisal, n number of decisions can be made. For example, if the performance is very good, so we can go for his promotion, we can go for his incentives and all that. If the performance is weak, so we will try to ask question to know why the performance was weak, what is the problem pertaining to his lack of performance, and accordingly we can provide that person training, suitable training, so that his performance is improved. By the means of interview, we can collect information about the prospective candidate, about the present performance, about the past performance, and how that employee will be useful in future also. So we can collect information regarding any issue, any problem, any person by the means of having one-to-one discussion. Another objective of the interview is to exchange information. Something I will be telling, something you will be telling. So there is the exchange of information that might be useful for both of us, and to counsel also. Like I said, if the performance of the employee is weak, if the performance is not satisfactory, if the person is facing problem, so we can have a discussion with that person and we can provide suitable advice, suggestion, that is to counsel. So these are the 5 objectives of the interview. Now, according to the purpose of the interview, it can be categorized in a number of ways. Like for the first one is job interview. If the interview is being conducted, if the communication between two persons is being conducted for the purpose of finding the suitability of the person for that job, it is called job interview. So in job interview, the employer wants to learn about the candidate's abilities, experiences, and the candidate also wants to learn about the position offered and the organization. Why you want to join this organization? What was your job profile in your previous organization? What kind of work have you done previously? What are your major achievements so far? So इस तरह के questions को पूछ करके हम suitability ascertain कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये जो candidate है ये इस पद के लिए उपयुक्त है या नहीं. Another type of interview can be information interview. If there is a specific problem, if there is certain issue, so in this interview, the interviewer seeks facts that might help in decision making and contribute to the basic understanding. उस problem से related, उस issue से related information प्राप्त हो जाएगा और उस information के basis पे we can take certain decisions. And information mainly flows in one direction. चूँकि ये inquiry के form में होगा, so information mainly flows from the interviewee to the interviewer. हम आपसे पूछेंगे और आप वो चीज़ें, वो वाइटल इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे. परसुएसिव इंटरव्यू. परसुएसिव मीन्स कन्विंस करने वाला इंटरव्यू. सो इफ ए पर्सन इज कमिंग टू योर ऑफिस, इफ अ पर्सन कम्स टू योर होम टू सेल अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो आप उससे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या दाम है, क्या उपयोगिता है, कितना फ़ायदेमंद होगा, क्या ड्यूरेबिलिटी है इसकी, कितनी वारंटी है. So you are asking questions and the salesperson is answering you to satisfy your queries. So this is called the persuasive interview. In this, one person tells another about a new idea, a new product, a new service, and explains why the other person should act on his recommendations, why the other person should accept his service, why the other person should accept his product. And this interview is often associated with selling, like I said. Then there are exit interview. Exit का मतलब निकासी. Whenever a person
is resigning from an organization, or a person is being promoted to another position, or the person is being transferred from one division to another division, so that person needs to know why he has been transferred, and we also try to know why the person is resigning. आप क्यों रिजाइन करना चाह रहे हैं, या आपका ट्रांसफ़र हो रहा है तो क्यों ट्रांसफ़र हो रहा है. तो ये इन्फॉर्मेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, जो लोगों को मैनेज करने वाला डिपार्टमेंट है, वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. So in exit interview, the interviewer tries to understand why the interviewee is leaving the organization or transferring to another department or division. The departing employee, यानी जो जाने वाला employee है, can provide insight into whether the business and the human resource is being properly handled or not. तो यदि कोई काम छोड़ करके जा रहा है तो कोई रीजन होता है. If it is he or she is going for a better salary, so we can talk to the management, we can talk to the person, okay, I can increase your salary, so you are not supposed to leave. And if the person is leaving saying that the policy of this organization are not good, my boss is not treating me well, तो I can know कि इस एम्प्लॉय के जाने के पीछे का रीजन क्या है, तो हम उस रीजन को सही करें ताकि और लोगों के पे इसका निगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े. So exit interview is the interview that helps you to find out the reasons why the employee is being departed. देन इवैल्यूएशन इंटरव्यूज़, जैसा कि मैंने बोला था कि जब परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है तो सुपरवाइज़र या बॉस जो है वो अपने एम्प्लॉई के साथ बैठ करके उसके परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करता है और उसके बेसिस पे फीडबैक देता है. एंड क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड एंड इंफॉर्मेशन इज़ बीइंग शेयर्ड कि वाई हिज परफॉर्मेंस इज़ बेटर, व्हाट हैज़ ही डन टू इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस, और इफ़ द परफॉर्मेंस इज़ नॉट गुड तो वाई द परफॉर्मेंस इज़ लैकिंग, व्हाट आर द रीजन्स, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स. So this helps to evaluate the employee's performance, and accordingly certain decisions can be made. Then there are counseling interviews. Counseling means किसी का सजेशन करना, उसके प्रॉब्लम को सुन करके उसको पॉसिबल सोल्यूशन प्रोवाइड करना. तो काउंसलिंग इंटरव्यू हेल्प्स द पर्सन टू. सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द काउंसलिंग इंटरव्यू, जिसमें वी the supervisor sits with the employee and try to know what is the problem, what is the issue that is bothering the employee, and because of that the problem, because of that issue, the performance of that employee is depreciating. ठीक है, तो उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए उसको प्रॉपर सजेशन, उसकी प्रॉपर काउंसलिंग होती है ताकि उसका काम में, परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आए. एंड जस्ट लाइक एग्जिट इंटरव्यूज़ कि आप क्यों छोड़ करके जा रहे हैं, व्हाट आर द रीजन, there are interviews that tells the employee कि because your performance is not satisfactory, because you have been found in indisciplinary act and your employment is being terminated. So such kind of interviews are called termination interviews, यानी नौकरी से निकाले जाने पे जो हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं to tell the employee the reason of his termination. In this interview, a supervisor informs an employee of the reasons for the termination of the latter, and the interviewer tries to avoid any legal involvement and also tries to maintain positive relationship with the employee. तो मिल बैठ करके एक amicable solution पे आने की कोशिश करते हैं. Now, whenever a candidate is appearing in the interview, तो उसके कुछ skills का मूल्यांकन हो रहा होता है. There are certain parameters. कम्युनिकेशन वगैरह के अलावा, लीडरशिप वगैरह के अलावा बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनके आधार पे हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि ये कैंडिडेट सूटेबल है या नहीं. तो जैसा जॉब होगा, जैसा परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया होगा. अब जैसे कोई अगर काउंसलिंग के जॉब के लिए आया हुआ है तो उसका पैरामीटर तो कुछ और होगा. उसके पैरामीटर में तो जो काउंसलिंग वाली सीट पे बैठा होता है तो उससे तो क्लाइंट बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है. तो यदि वो जल्दी से गुस्सा हो जाने वाला होगा, प्रॉपर तरीके से बात करने वाला नहीं, रूड होगा, तो उसको तो हम उस नौकरी पे नहीं रख सकते हैं. काउंसलर वाले जॉब के लिए, रिसेप्शन जैसे पोजीशन के लिए हमको ऐसा बंदा चाहिए होगा जो पेशेंट हो, जो सॉफ्ट स्पोकन हो, जिसकी पर्सनालिटी अच्छी हो, जिसके अंदर पेशेंस हो, आराम से क्वेश्चंस को सुने और उसका आंसर दे. तो अलग अलग जॉब्स के लिए अलग अलग पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ती है. तो क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होता है एक इंटरव्यू देने वालों में, तो उसके बारे में बात करते हैं. तो टेक्निकल स्किल, यदि कोई टेक्निकल जॉब के लिए है, सिविल इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, सॉफ्टवेयर डेवलपर का, तो उस स्ट्रीम से रिलेटेड उसके पास क्या टेक्निकल
स्किल्स अवेलेबल है। स्किल को कैसे परिभाषित करेंगे? स्किल इज़ द एबिलिटी टू डू सर्टन थिंग इन एन एक्सपर्ट वे। किसी भी काम को एक्सपर्ट के तरीके से करने की जो काबिलियत होती है उसी को स्किल बोलते हैं, निपुणता। मैं भी टेबल बना सकता हूँ, आप भी टेबल बना सकते हैं और बढ़ई भी टेबल बनाएगा, लेकिन जो टेबल हम और आप बनाएंगे और जो बढ़ई बनाएगा उसमें बहुत अंतर आएगा। उसकी फिनिशिंग अच्छी होगी, उसके डायमेंशंस अच्छे होंगे, उसकी बैलेंसिंग अच्छा होगा, बिकॉज ही इज़ skilled in that activity, he is an expert in that making of the table. So skill is the ability to do something in an expert way. तो अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए है तो मान लीजिए कि जावा प्रोग्रामिंग का है तो आपका जावा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिविल इंजीनियरिंग से है तो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, फिर आपका मूल्यांकन एनालिटिकल स्किल्स के बेसिस पे होगा। एनालिटिकल स्किल का मतलब किसी भी चीज़ को तर्कपूर्ण तरीके से सॉल्व करने की एबिलिटी कैंडिडेट के अंदर है कि नहीं है, विवेचना करने की काबिलियत है कि नहीं है, अदरवाइज़ वो पक्षपात कर सकता है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को हमको देखना होगा। तो टू चेक द एनालिटिकल एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, एनालिटिकल स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। आपका करियर ऑब्जेक्टिव क्या है? एम आई क्लियर अबाउट माई गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, या ऐसे ही इंटरव्यू के लिए आ गया, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, जहाँ पे ज़िंदगी ले जा रही है उधर ही बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मेरा करियर ऑब्जेक्टिव क्या है? तो आपको याद होगा, आप लोग जो CV बनाते हैं तो उसमें करियर ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। तो उसको पढ़ करके इंटरव्यूअर को लग जाता है कि दिस पर्सन इज़ हैविंग ए डेफिनेट गोल इन हिज लाइफ। ए पर्सन विदाउट गोल इज़ लाइक ए नोमैड, बंजारे की तरह, कोई फिक्स ठिकाना नहीं होगा उसका। Then the next ability that is required is the mental agility. Mental agility मतलब skillfulness, adaptability, कि कितना स्फूर्ति वाला है, how quick he is in making decisions, how quick he is in giving the answers. तो mental ability, mental skillfulness, alertness का चेक हो सकता है। Interpersonal skill means the way we interact with others. What are the things that makes you a good person is the good interpersonal skills. Am I able to make contact with people? Am I considerate? Am I having the ability to motivate people? Do I have patience to other people's views? So what are my interpersonal skills? Flexibility and adaptability. When I am going to work, I should be flexible, means I should be able to work under any circumstances. If the need of the hour is to work for 12 hours, I should be able to work for 12 hours. हमेशा तो 12 घंटे काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई इशू आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गया, तो आई शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू वर्क एंड टू फुलफिल दोज काइंड ऑफ डिमांड्स। एडेप्टेबिलिटी, बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल पाने की मेरे अंदर कैपेबिलिटी है कि नहीं। दोज हु आर रियर्ड, दोज हु आर नर्चर्ड इन ए वेरी प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट, बहुत जो घर के दुलारे होते हैं वो कभी बाहर नौकरी करने के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी हताश होकर छोड़ के चले जाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट अडेप्टेबल टू द न्यू सिचुएशन, न्यू सिटी, न्यू वर्क एनवायरनमेंट। व्हाट आर माई मैनेजरियल एंड लीडरशिप स्किल? मैनेजरियल स्किल का मतलब क्या हो गया कि क्या मेरे पास जो संसाधन है, हु इज़ अ गुड मैनेजर, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज़ द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी मौजूद संसाधन हैं उन संसाधनों का प्रभावी तरीके से बिना वेस्ट किए हुए अगर हम उपयोग कर पा रहे हैं, मैक्सिमम इस्तेमाल कर पा रहे हैं, तो आई एम ए गुड मैनेजर। एंड वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर दैट यू कैन फाइंड इज़ योर ओन मदर। शी मैनेजेस योर हाउस सो एफिशिएंटली, कम में भी ज़्यादा में भी। ठीक है, तो व्हाट आर माई मैनेजरियल abilities, what are my managerial skills, whether am I able to manage the resources, how to handle people, how to handle raw material, how to handle money, how to handle time, ठीक है। एंड व्हाट आर द लीडरशिप स्किल्स, मेरे अंदर नेतृत्व क्षमता है कि नहीं। लीडरशिप का मतलब होता है इट इज़ द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स पीपल बिहेवियर टू अचीव सम डिजायर्ड गोल्स। दूसरों के व्यवहार को यदि हम प्रभावित कर पा रहे हैं ताकि वो मेरे गोल को अचीव करा पाएँ, तो वो लीडरशिप स्किल है। नेताओं के अंदर होता है, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, जिन नेता बोलता है यहाँ चलना है तो लोग वहाँ चले जाते हैं। ठीक है, तो लीडरशिप का मतलब सिर्फ राजनीति के लीडरशिप से नहीं है। लीडरशिप का मतलब आप एक काम में भी, आप अपने ग्रुप में भी, आप अपने फैमिली में भी परेशानी की स्थिति में उनको आप दिशा दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, अच्छे परिस्थितियों में उनको नया एक्सपेंशन दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। तो मैनेजरियल और लीडरशिप स्किल का इवैल्यूएशन भी होता है इंटरव्यू के माध्यम से। अनदर स्किल दैट इज़ यूजफुल इज़ हाउ क्रिएटिव आई एम। मैं किसी भी काम को कितने नए तरीके से, कितने प्रभावी तरीके से, कितने रचनात्मकता के साथ कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, वो इवैल्यूएट। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इसके माध्यम से ये चेक हो सकता है।
मेरा जीवन के प्रति नज़रिया क्या है, निगेटिव एटीट्यूड वाला है या पॉजिटिव एटीट्यूड वाला है, तो उसी बंदे का सिलेक्शन होगा जिसका जीवन के प्रति सकारात्मक रवैया, पॉजिटिव एटीट्यूड। What are the social skills? Means how am I behaving in the group, how am I behaving in my team, in my department। तो जो अंतर्मुखी व्यक्ति होता है, जो इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन होता है, उसका सोशल स्किल बहुत वीक होता है। ही विल नॉट बी एबल टू मेक फ्रेंड्स, ही विल नॉट बी एबल टू वर्क इन अ टीम। Honesty and integrity, how honest I am, how integral my personality is। means integrity means कि हम अपने काम के प्रति कितने समर्पित हैं, ईमानदारी से कितना काम कर रहे हैं, मेरे अंदर दृढ़ निश्चयता है कि नहीं, डिटर्मिनेशन। इंटरव्यूअर पूछेगा इफ़ यू आर नॉट सेलेक्टेड देन, तो जिस तरीके का आप जवाब देंगे उसमें फिर आपको परेशान करेगा, फिर परेशान करेगा, मतलब आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, वो चेक करने के लिए कि आप कितने डिटर्मिन्ड हैं। हाउ प्रोफेशनल एम आई, प्रोफेशनलिज्म मीन्स कि मैं अपने काम को रोबस्ट तरीके से, फॉर्मल तरीके से विद इन टाइम कर रहा हूँ कि नहीं, काम के प्रति मेरा नज़रिया कैसा है, सकारात्मक है या नहीं, और कुछ सीखने की एबिलिटी मेरे अंदर है कि नहीं है। बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत ज्ञानवान मान लेते हैं कि वॉट एवर नॉलेज आई हैव दैट इज सफिशिएंट। ऐसा नहीं है। एवरी डे वी आर लर्निंग अ न्यू थिंग, एवरी डे वी आर लर्निंग अ न्यू स्किल्स। तो किसी भी चैलेंजिंग परिस्थिति में यदि हम काम कर रहे हैं तो वो मेरा रेडीनेस है कुछ नया सीखने के लिए। सो दीज आर द 14 ऑलमोस्ट skills that is being evaluated during the interview process. Now, when you are not selected for an interview, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, फॉल्ट कहीं ना कहीं रहा होगा जिसकी वजह से आप इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं होंगे। वो एक कारण हो सकता है एरोगेंस, यानी आपका बिहेवियर रूड रहा हो, आपने प्रॉपर तरीके से आंसर नहीं किया हो, आपके अंदर नॉलेज ना हो, जो सब्जेक्ट जिस स्ट्रीम के लिए गए हैं उसका उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास नॉलेज ना हो, आप अपैथेटिक रहे हों, यानी आपके अंदर दूसरों की पीड़ा को समझने की, दूसरों के प्रॉब्लम को समझने की कैपेबिलिटी है या नहीं है। ठीक है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, आप डरे सहमे से थे। तो फॉर अ परफॉर्मेंस, फॉर अ गुड परफॉर्मेंस, फॉर अ गुड जॉब वी नीड अ पर्सन हु हैज़ कॉन्फिडेंस, जिसके अंदर मोटिवेशन एबिलिटी हो, जिसकी पर्सनालिटी चार्मिंग हो, जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो। ये सब चीज़ कब आएगी, जब हम कॉन्फिडेंट रहेंगे। ठीक है, आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। लैक ऑफ क्लैरिटी, वॉट एवर इन्फॉर्मेशन, वॉट एवर आंसर आई एम गिविंग, आई एम कन्फ्यूज्ड, वॉट आई एम ट्राइंग टू से इट इज़ नॉट वेरी मच क्लियर। तो लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से आपका रिजेक्शन हो सकता है। आप अपनी बात पे दृढ़ निश्चय नहीं हैं, आप अपने आंसर को बार बार बदल रहे हैं। लैक ऑफ फर्मनेस एंड ड्यू टू लैक ऑफ लीडरशिप स्किल यू मे ऑल्सो बी रिजेक्टेड इन द इंटरव्यू प्रोसेस। नाउ व्हाट आर द थिंग्स that we should be following whenever we are going to appear in an interview? So like I said, interview is a discussion, is a communication with a purpose. You are going to sell your ideas. तो आपके अंदर एक सेल्समैनशिप होना चाहिए, हर आदमी के अंदर सेल्समैनशिप होना चाहिए। सेल्समैनशिप का मतलब क्या हो गया कि आई शुड बी एबल टू सेल माई आइडियाज़, आई शुड बी एबल टू सेल माई नॉलेज। आई सेल का मतलब दाम वाला नहीं, आई मतलब सेल का मतलब यहाँ से ये है कि आई शुड बी एबल टू कन्विंस अदर अबाउट माई स्किल, अबाउट माई नॉलेज। एक अच्छा सेल्समैन क्या करता है, आपको अपने प्रोडक्ट से कन्विंस करा देता है, तो वही चीज़ है। तो सेल्समैनशिप वाली एबिलिटी सबके अंदर होनी चाहिए। तो इंटरव्यू में जाने से पहले आपको अपने सब्जेक्ट नॉलेज ब्रशअप कर लेना चाहिए। आप जिस भी स्ट्रीम से हैं तो उस स्ट्रीम के जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स रहे होंगे, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो एटलीस्ट 4-5 सब्जेक्ट्स आपके ऐसे हों जो आप बता सकें, उस पर क्वेश्चन पूछे जा सकें। बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए जिस भी स्ट्रीम से हो, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस। ठीक है, और जिस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में जानकारी जरूर, नो दी ऑर्गेनाइजेशन। हमारे यहाँ कंपनियाँ आती हैं, पूछती हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट माई ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे लोग नहीं बता पाते हैं। तो जिस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जिस संस्था के में काम करने के लिए जा रहे हो, उस संस्था के बारे में तो जानकारी रखनी चाहिए। और जिस काम के लिए जा रहा है उस काम में हमको करना क्या, उस काम का जॉब डिस्क्रिप्शन क्या, क्या प्रोफाइल है, ये हमको पता कर लेना चाहिए। कहाँ से पता चलेगा, कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे, कंपनी की वेबसाइट पे जा कर के पता चलेगा कि ये कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई थी, क्या काम करती है, क्या प्रोडक्ट्स हैं, कहाँ कहाँ ऑफिसेज हैं। और जो विज्ञापन निकला होगा कि इस पद के लिए आपकी इंटरव्यू होने वाला है, तो उस पद के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
ठीक है, कंपनी का लिटरेचर, वेबसाइट, इंटरनेट, गूगल, उस कंपनी में काम करने वाले कोई यार दोस्त हो, कोई नोन हो, तो वहाँ से आप उस कंपनी के बारे में, उस जॉब के बारे में डिटेल्स पता कर सकते हैं, ताकि आप वेल प्रिपेयर्ड रहें, अपने आप को उस हिसाब से आप प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे मैकेनिकल के लोगों को मान लीजिए प्रोडक्शन में जाना है या ऑटोमोबाइल में जाना है, तो अगर ऑटोमोबाइल में जाना है तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में जानकारी पहले से रख लेंगे उस हिसाब से। और प्रिपेयर योर सूटेबल सीवी, अपना एक करिकुलम वाइटे अच्छे से तैयार कर लें। करिकुलम वाइटे क्या होता है? जिसमें कैंडिडेट अपने बारे में इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्ड तरीके से मेंशन करता है, जिसमें आपका अपना एजुकेशनल डिटेल्स होता है, आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी होता है, आपने रिसर्च पेपर पब्लिश किया उसके बारे में जानकारी, आपने कहाँ कहाँ काम किया है तो आपका वर्क एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी, आपका पर्सनल डिटेल्स। सो ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयर को ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपका CV में होना चाहिए। एंड वट एवर यू राइट ऑन द CV इट शुड बी करेक्ट, क्योंकि उस CV के बेसिस पे भी आपका इंटरव्यू होगा। जो आपने किया है, जो आपने अचीव किया है, वही आपके CV पे होना चाहिए। थॉरो नॉलेज ऑन द क्लेम्स मेड, यही मतलब हुआ कि जो भी हम चीज़ क्लेम कर रहे हैं कि आई हैव डन ऑटोकैड, तो आपको ऑटोकैड आना चाहिए। आई हैव वर्कड ऑन जावा प्रोजेक्ट, तो आपको जावा आना चाहिए। आई हैव वर्कड इन सच एंड सच प्रोजेक्ट, आई हैव मेड सच एंड सच रिसर्च पेपर, तो वो सारी चीज़ आपको किया हुआ होना चाहिए। उसके बारे में थॉरो नॉलेज भी, सिर्फ लिख देने से काम नहीं चलेगा। नो योरसेल्फ मीन्स हमको अपने बारे में भी जानकारी है। नो योरसेल्फ का मतलब ये नहीं कि मेरा नाम ये है, मीन्स हमको अपना एक प्रॉपर सेल्फ इंट्रोडक्शन तैयार कर लेना चाहिए। हमको अपने स्ट्रेंथ के बारे में, अपने वीकनेस के बारे में, अपने करियर ऑब्जेक्टिव के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। इंटरव्यू में जो पहला क्वेश्चन नॉर्मली होता है दैट इज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन 90 सेकंड का, 90 सेकंड यानी 1.5 मिनट का प्रॉपर एक इंट्रोडक्शन अपना तैयार कर लेना चाहिए, जिसमें आप अपने बारे में बताएंगे, अपने ब्रीफ फैमिली डिटेल्स के बारे में बताएंगे। जो फ्रेशर है तो अपने एजुकेशनल डिटेल्स के बारे में बताएंगे, अपने फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करेंगे। स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं है फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं है, स्ट्रेंथ का मतलब आपका टेक्निकल और बिहेवियरल स्ट्रेंथ क्या है। सर माई स्ट्रेंथ इज दैट आई एम गुड एट communication, I can work in a team, I have the leadership ability, my Java programming is good, I have also knowledge of the Python, something like that। वो आपका टेक्निकल और बिहेवियरल स्किल। और जब पूछा जाए तभी अपने वीकनेस के बारे में बताना चाहिए। टेल मी समथिंग अबाउट योर वीकनेस, तो आपको अपना वीकनेस भी जानना चाहिए। तो वीकनेस वाले सवाल को पूछने के पीछे रीज़न क्या होता है कि इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि यदि आपको अपना वीकनेस के बारे में पता है तो अपने वीकनेस को दूर करने के लिए आप कर क्या रहे हैं। द थिंग इज़ कि हमको प्रॉब्लम से मतलब नहीं है, प्रॉब्लम जानना तो ठीक है, लेकिन उस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इफ़ आई नो दैट दिस इज़ माई वीकनेस, तो व्हाट एम आई डूइंग टू रिमूव दैट वीकनेस। एज एन इंजीनियर, एज ए एग्जीक्यूटिव, हमारा रोल क्या होना चाहिए? हमारा रोल सोल्यूशन प्रोवाइडर का होना चाहिए। तो इंटरव्यू में वीकनेस इसी पर्पज़ से पूछा जाता है कि यदि मेरे व्यक्तित्व में, यदि मेरे पर्सनालिटी में, यदि मेरे काम में कोई वीकनेस है तो उस वीकनेस को दूर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो ये भी बताना चाहिए। व्हाट इज़ माई करियर ऑब्जेक्टिव। इंटरव्यू पूछेगा वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 ईयर्स, यानी 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। तो बहुत सारे लोग जैसे मान लीजिए कि इंजीनियर के जॉब के लिए जा रहे हैं और पूछता है वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 ईयर्स, तो वो बहुत आवेश में आ जाते हैं और बोलते हैं कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, सिविल सर्वेंट बनना चाहता हूँ। तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर आप जिस कंपनी के जिस प्रोफाइल के लिए जॉब करने जा रहे हैं उसी से रिलेटेड करियर ऑब्जेक्टिव बताना चाहिए। यदि आप IAS बनने जा रहे हैं तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, मेरा भी समय बर्बाद कर रहे हैं। आपको हम सेलेक्ट क्यों करेंगे जब आप 1 साल बाद, 1.5 साल बाद छोड़ के चले जाएंगे। तो जैसा प्रोफाइल, जैसा कंपनी, उसके अकॉर्डिंगली हमको अपने करियर ऑब्जेक्टिव को प्रोजेक्ट करना चाहिए। एंड प्रॉपर ड्रेसिंग, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, आप उसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, आप उस प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित होते हैं जिसकी पैकेजिंग अच्छी होती है। तो इफ़ आई एम वेल ड्रेस्ड तो माई पर्सनैलिटी विल लुक चार्म। वेल ड्रेस्ड का मतलब ये नहीं है कि महंगे कपड़े पहनना, मीन्स आई शुड बी फॉर्मली ड्रेस्ड अप। मीन्स मेरा आउटलुक जो होता है एक प्रोफेशनल लुक होना चाहिए। माई हेयर शुड बी प्रॉपरली कॉम्ड, if I keep beard, my beard should be properly trimmed. Light shirt, dark pant, accordingly we can wear tie, black shoes, ठीक है। तो ये सारा एक अटायर जो है हमारा प्रॉपर प्लीजिंग पर्सनालिटी बनाता है। आपने खुद में भी महसूस करते हैं जब आप अच्छे से ड्रेस होकर कहीं जाते हैं तो आप कॉन्फिडेंट लगते हैं अपने आप, और जब प्रॉपरली ड्रेस होकर नहीं जाते तो आप खुद ही में डरे सा में रहते हैं। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है।
Then, before appearing for any interview, we should be anticipating proper HR questions. So anticipate all the possible HR questions. There are certain questions, like मैंने अभी पहले आपको डिस्कस करके बताया था, like why, tell me something about yourself, introduce yourself, why you want to join this organization, why should we select you, what are your strengths, what have you done in your project, where do you see yourself after 5 years, what are your hobbies. So there are n number of HR round questions, यानी human resource related जो questions होते हैं. एंड देयर माइट बी टेक्निकल क्वेश्चंस ऑल्सो. यदि हम प्रोग्रामिंग के लिए जा रहे हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड प्रोफाइल है तो पाइथन के बारे में पढ़ के जाएँ, जावा है तो जावा के बारे में पढ़ के जाएँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के है तो उससे रिलेटेड पढ़ के जाएँ, एंड प्रिपेयर द आंसर्स अकॉर्डिंगली. एंड यू शुड बी केयरफुल वाइल गिविंग द आंसर. यदि आपको कोई सवाल का जवाब नहीं आता है तो डोंट डॉज द इंटरव्यूअर. ग्रेसफुली एक्सेप्ट, सर at this point of time I am unable to recall my answer but I have studied this, but related to this I have done something like this. तो जो आपको पता है उस डोमेन में इंटरव्यूअर को लेकर के जाइए. इंस्टेड ऑफ गिविंग फॉल्स रॉन्ग आंसर, एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली एंड टेल हिम टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन या व्हाट यू ऑलरेडी नो, समथिंग लाइक दैट. ठीक है. बी पोलाइट ड्यूरिंग द इंटरव्यू. You should have a proper body language. The way you sit, the way you make eye contact tells a lot about your personality. Okay? Be pleasant. Have a very pleasant smile on your face. Charming look वगैरह रहे. So these are the things that you should be carefully following while appearing in an interview. Thank you. So this was all about the today's lecture.